Welcome back to Smart PrepNet. So we were discussing PIQs of paper 2 environmental science for UGC NET. Okay. So till now we have completed till unit 3. Yeah, till unit 3 we have done. Okay, we have done basics, we have done environmental chemistry. Okay, we have done environmental geology. Now we are entering the fourth unit. Okay, unit 4, that is environmental geosciences. So this we will complete this in two parts. Okay, and I hope you all are doing well, great in health. So the delay in lecture is due to my health reasons, not in good health, but still let's go with. So before jumping to the PY code, let's first look into the syllabus. Okay, so we have to read origin of Earth, family, geochemical differentiation and formation of core, mantle, crust, atmosphere, and hydrosphere. Okay, then we have concept of mineral and rocks, formation of igneous and metamorphic rocks, controls on formation of landforms, techno- tectonic including plate tectonics and climatic, ठीक है? Concept of steady rate and equilibrium, energy budget, as common environment decisions, Coriolis force, desert gradient force, frictional force, geostrophic winds, field gradient winds, climates of India, coastal disturbances, Indian monsoon, drought, El Nino, La Nina, concept of resilience times and rates of natural cycles, geophysical fields. तो अगर हम देखें ये सब क्या इंक्लूड करता है, ये सब का सब लगभग ये मोस्टली ये टॉपिक ना जियोग्राफी से ओवरलैप करता है, जियोग्राफी और जियोलॉजी से. ठीक है, मोस्ट ऑफ पार्ट इज जियोग्राफी एंड लेसर इज जियोलॉजी. ठीक है, वैसे जियोग्राफी ऑलरेडी डिराइव्ड है बहुत सारे सब्जेक्ट से. तो आफ्टर दैट वी हैव वेदरिंग, including weathering reactions, erosions, transportation, deposition of sediments, soil forming minerals, process of soil formation, maybe everything about soil identification and characterization of clay minerals, soil physical and chemical properties, soil types, climatic control of soil formation, cation exchange capacity, and mineralogical control. So, if you these are the topics, and if you read all these topics, and the question is being asked from surface also, from going into little bit detail also. Okay, so we have to read in little bit detail also. Few topics in much detail because now they have started going deeper in those topics. And for all this, the basics requirement, like you have the basic understanding of chemistry. Okay, you must have basic understanding of physics. Okay, you must like in the climate part, that is the uh, Indian monsoon, or El Nino, La Nina. Okay, you have basic understanding of the you know chemistry, physics. Okay, like very basic. Okay, it will help. Then we have geochemical classification of elements. Okay, abundance of elements in bulk in earth, crust, hydrosphere, and biosphere. Like in which sphere where the which element is in maximum quantity, which is in lesser quantity, like that. Naturally occurring partitioning of elements during superficial geological processes, surfacial. After that, geochemical recycling of elements, paleoclimate, and then we have now water thing, like what, the distribution of water on earth, hydrology. Okay, hydrogeology, we have major basins, groundwater provinces of India, Darcy law and its validity, groundwater fluctuations, hydraulic conductivity, groundwater pressures, land subsidence, effect of excessive use of groundwater, what are the negative impacts. Okay, like in coastal area, if you have too much of excessive use of groundwater, then saltwater intrusion occurs, and we have here the problem with lowering water table and all these things.
and then caving also. Like now we have extracted the groundwater. Now there is a hollow cave there, cavity there. Sometimes that's cave in due to geological activity like the earthquake, or sometimes due to pressure, mounting pressure, groundwater quality. Okay, see, like how they are polluting, like what are the chemicals in that, which salt is there present, not present, how to utilize this, all these things. Pollution of groundwater resources. Okay, Gavin Hertzberg relations with water, fresh and line water. After that, we have natural resource exploration and exploitation and related environmental concern. Okay, historical perspective and conservation of non-renewable resources. And we have natural hazards, catastrophic geological hazards, floods, landslide, earthquake, volcanism, avalanche, tsunami, cloudburst, prediction of hazard and mitigation of their impacts. So here also we have to read natural resource exploration. We are reading here only, and then in energy environment we are going to learn about in much detail about those resources and their use. Okay, like some questions might come like in India, in which region mica is found in abundance, and then we have four options. So for that, for such questions, this topic is important. Okay, now let's move on to the MCQs. So this is the first MCQ. Okay, so the process of illuviation in soil indicates. So process of illuviation. Illuviation क्या है? तो illuviation एक process है. Okay, इस process में क्या होता है? तो illuviation में क्या होता है कि क्ले पार्टिकल जैसे आयरन ऑक्साइड, अल्युमिनियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक मैटर accumulate. Okay, when they move downward from the upper layers, they accumulate. So where they accumulate, mostly they accumulate in B horizon, because C horizon is much below, near the bedrock. Okay, this is the bedrock. This is bedrock. This is C horizon. Machine. So here now this is a B. Okay, this is a A. Okay, there are different layers over B. So he from here they sip and then here they illuviate. Illuviate matlab they accumulate. Okay, so B horizon is also known as zone of accumulation or alluvial zone. Okay. Then another word we know that then we have this word also. We must know that is illuviation. That is alluviation. Okay, illuviation. Okay. Then we have this word also. So what does this word? This is a process. This word signifies, you know, denotes the process where fine particles and soluble materials are washed out from upper soil layers by downward moving water through capillary action and other. Like water is there, water is seeping through with water. These fine particles and soluble materials, they also get washed out from the top layer and they move downward with the water. This process is called illuviation. But illuviation is what? Illuviation is this process. Illuviation then when those particles come down in near B horizon and accumulate here, this is called illuviation. Okay. Next. So here we have given the details. Okay. Removal particles from top A or E horizon is called illuviation. Leaching. Not exactly leaching, but yes, leaching. That process is leaching only. And illuviation is accumulation resulting from illuviation. Okay. If illuviation is not happening, then illuviation is not going to happen. It's simple as it. Okay. Okay. Next, the water is called aggressive. Okay. Water is called aggressive if when water is called aggressive. The first one is when Ca2 plus concentration is much less than CaCO through saturation. So first we must know that what is aggressive. Aggressive water. तो एग्रेसिव वाटर वाटर की एग्रेसिवनेस जो है तो मतलब क्या है एग्रेसिवनेस वाटर refers to the capacity of water to dissolve calcium carbonate, limestone, chalk और other minerals. Okay, एग्रेसिव मतलब वाटर एग्रेसिवनेस मतलब तो कितना अपने अंदर उसका कैपेसिटी कितना है
उस वाटर का, मतलब जो लिया गया है गिवन वाटर का, कि अपने अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या अदर मिनरल्स को डिजोल्व कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब सी ए सी यू कार्बन, सी ए सी यू थ्रू का सेचुरेशन पॉइंट एक है। ठीक है। सपोज कुछ भी एक वैल्यू हो, हाँ इतना हम अपने अंदर क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को वो डिजोल्व कर सकता है। देयर इज ए लिमिट। ओके, सपोज कि 100 ग्राम, सपोज एक वाटर है, वाटर लिया गया उसमें कर सकते हैं। उसमें कह रहा है Ca2+ कंसंट्रेशन मस्ट लेस देन, अगर ये CO सेचुरेशन पॉइंट से अगर Ca2+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, वाटर एग्रेसिव होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी तो सैचुरेशन पहुंचा ही नहीं, सैचुरेशन नहीं पहुंचा तो उसको Ca2+ आयन और चाहिए ना, और से ज्यादा Ca2+ आएगा तो वो अभी एक्यूमुलेट कर सकता है, यानी कि मच लेस है, मतलब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा, Ca2+ कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं, इक्वल तो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो गया कि 100 ग्राम चाहिए था जो हमने एग्जांपल में लिया, और 100 ग्राम उसमें आ गया Ca2+ है। ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना सेचुरेशन के लिए चाहिए था उतना सेचुरेट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये ना ही प्रेसिपिटेट करेगा, मतलब ज्यादा ज्यादा हो जाएगा तो नीचे 100, जहाँ 101 ग्राम हुआ तो 1 ग्राम तो इसमें सेचुरेट होल्ड नहीं कर पाएगा, तो नीचे आके जम जाएगा। तो ये 100 ग्राम उसे था सेचुरेशन लिमिट, और ये 100 ग्राम आ गया, तो यहाँ पे इक्वल है। तो ना ये घटाएगा, ना ये सॉरी प्रेसिपिटेट होगा, और ना ही ये और ऐड करेगा। ठीक है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है। उसके बाद है Ca2 कंसेंट्रेशन मोर देन CaCO थ्रू। इस केस में तो जितना ज्यादा होगा वो नीचे प्रेसिपिटेट करने रहेगा। ठीक है, वो डिजोल्व होने की जगह। उसके बाद क्या है, Ca2+ कंसेंट्रेशन इज डबल द Ca, तो ये और ज्यादा एग्रेसिवली सुपर सैचुरेटेड वाटर है, यहाँ पे तो रैपिडली प्रेसिपिटेट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब हमें एग्रेसिव में वाटर की क्यों जरूरी है, ठीक है, एग्रेसिव वाटर किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे कार्टिसिफिकेशन होता है ना, कार्टिसिफिकेशन जहाँ पे लाइमस्टोन लैंड सब बनता है, जैसे केव बनता है, सिंकोस बोलते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनते हैं, तो वहाँ ये सब ये बहुत जरूरी है वहाँ पे। ठीक है, वाटर का एग्जिस्टेंस। और ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन केसेस में अगर एग्रेसिव वाटर है तो वो क्या करता है, कोरेड कर देता है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। पाइप में कई बार कैसे कंपाउंड, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट होता है ना, तो इसलिए वाटर को ट्रीट किया जाता है कि वाटर को जो हार्डनेस है ना उसको एडजस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा उसमें हार्डनेस रहा तो क्या करेगा, आपके देखेंगे पाइप्स में वो ना एक लेयर से जमा हो जाता है, व्हाइट व्हाइट रंग का, मतलब पेल व्हाइट रंग का कह सकते हैं। ठीक है। तो वो एक लेयर पाइप में जमा हो जाता है, फिर जहाँ पे पानी नल से गिरते रहता है वहां पे जमा होता है, देखेंगे नल पे भी जमा हो जाता है, एक लगता है कि पत्थर टाइप कुछ जमा है। ठीक है। तो वो हो जाता है। और अगर ज्यादा अगर हार्डनेस बहुत कम कर दिया गया तो अब ये एग्रेसिव वाटर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि आपके जहाँ जहाँ पानी गिरेगा, सपोज कि एक बना है कैल्शियम कार्बोनेट का या या फिर कंक्रीट का, उसको इरोड करना शुरू कर देगा फास्ट, क्योंकि उसको बहा के वो ले जाना शुरू कर देगा Ca2+ आयन। तो इसलिए ये इसका मतलब मैं डेली लाइफ जो इम्पोर्टेंस है वो भी बता, कल को आ सकता है ना, हु नोज, बेटर टू बी रेडी। ये सब डिटेल्स है view है। उसका द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ इन द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो एक जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना है, तो लगभग 25 डिग्री पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास बढ़ जाता है, मतलब ये इनिशियल है, बाद में वो 16 डिग्री भी हो जाता है बहुत अंदर जाने के बाद, तो इट डिपेंड्स। ठीक है। लेकिन ये जो माना गया है वो है 25 डिग्री। ठीक है। और ये वैरी करता है ना कि आप कहाँ पे है, टेक्टोनिक सेटिंग पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल थिकनेस पे डिपेंड करता है, हीट प्रोडक्शन, मतलब नीचे कितना ज्यादा रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है कि उसके कारण से हीट आ रहा है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लोकल रॉक्स, मतलब लोकल रॉक जो थर्मल कंडक्टिविटी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो वो ज्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा फास्टर कंपेयर, लेकिन एवरेज यहाँ पे हुआ था। ये जियो थर्मल ग्रेडियंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जियो थर्मल एनर्जी को जो एक्सप्लोरेशन होता है ना, तो जहाँ पे हायर ग्रेडियंट है वहाँ पे मोर इकोनॉमिकली वाइबल है जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है। मतलब ज्यादा गर्मी मतलब कि थोड़ा सा अंदर के ज्यादा गर्म हो गया, तो डिफरेंस से ज्यादा आ गया ना, मान लो सपोज कि हम 1 किलोमीटर गए, यहाँ पे गए, जहाँ सपोज एवरेज 25, यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ गया, तो ये यहाँ से
ठीक है, इजीली हम पानी यहाँ से सोर्स करके यहाँ से फिर स्टीम बना के यूज कर सकते हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा आसानी से। फिर मेटामॉर्फिक प्रोसेस को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑयल और गैस का जो मैचुरेशन होता है, मैच्योर होते हैं, वो भी इसी थर्मल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। हॉट स्प्रिंग और गीजर जो फॉर्म होते हैं वो भी इसी थर्मल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ कुछ जगह जैसे कि आइसलैंड है, तो वो आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है जो कि मिड ओशनिक रीजन है अटलांटिक में, वो उसी पे स्थित है। ठीक है, उसी के ऊपर ये आइलैंड स्थित है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जियोथर्मल ग्रेडियंट कई बार 200 डिग्री पर किलोमीटर से भी ज्यादा चला जाता है कुछ कुछ से। तब 200 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर ग्रेडियंट है पर किलोमीटर में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत ही बेस्ट लोकेशन है जियोथर्मल प्रोडक्शन की। 200 डिग्री मतलब 200 डिग्री का डिफरेंस मतलब बहुत फास्ट मूविंग होगा यहाँ सब कुछ। और 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि मस्त वाटर बॉइलिंग स्पीड से लेके सब कुछ मतलब है। ठीक है, ये दिया हुआ ये। तो जो हीट आता है ना वो रेडियो एक्टिव डीके एलिमेंट्स यूरेनियम थोरियम पोटेशियम क्रस्ट के मेंटल और लोअर क्रस्ट में और मेंटल में ये सब डीके होते हैं, उसके कारण आता है। ठीक है, चलते हैं। फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स क्या है? फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स, तो ये क्या है? तो फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो ये क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स है। बिल्कुल सही बात, ये बाइकार्बोनेट्स है नहीं। ठीक है, फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स है जिनके अंदर क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या क्या होता है? तो इनके सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर में। और ये ब्लैक ब्राउन ग्रीन कलर मिनरल्स दिखते हैं यूजुअली, बट ये मतलब फंडामेंटल डिफिनेशन नहीं है ना क्राइटेरिया, फंडामेंटल डिफिनेशन क्राइटेरिया क्या ये है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कई लोग कहेंगे अरे हम तो पढ़े थे, हाँ ठीक है, बट फंडामेंटल क्राइटेरिया की ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स तो कम्प्लीटली डिफरेंट है ना, मतलब डिफरेंट क्लास ऑफ मिनरल्स होता है जिसमें कि, ठीक है, SiO3 प्लस SiO3 माइनस आयन होता है। और उसके बाद हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं वो लेस रेजिस्टेंट होते हैं वेदरिंग से कंपेयर टू नॉन केम, ठीक है, वेदरिंग। ठीक है, अगर जैसे कि सिलिकेट्स जैसे क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, ठीक है, वो क्या है, नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स है। तो क्वार्ट्ज और फेल्सपर जल्दी इरोड वेदर नहीं होते, लेकिन ये लोग हाईली इरोड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम है, वो ससेप्टेबल बनाता है इनको केमिकल वेदरिंग के लिए, सर्वाइवल और ह्यूमिड कंडीशन में। और कौन कौन से कॉमन एग्जांपल है फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स का? तो ओलिवाइन है। ठीक है, ये नाम सुनते चले क्योंकि ये आगे भी आएंगे। ठीक है, पायरोक्सिन्स है। ठीक है, जैसे कि पायरोक्सिन्स कौन कौन से, ऑगाइट हो गए, एंसेटाइट हो गए। फिर एम्फीवोल्स है, ये भी फेरो मैग्नीशियंस है, एम्फीवोल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया हॉर्नब्लेंड। बायोटाइट है, डार्क माइका जिसको बोलते हैं बायोटाइट। उसके बाद क्लोराइट है। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स है कहाँ एबंडेंट है? मैफिक और अल्टरनेटिव इग्नियस रॉक्स में, बसाल्ट, गैब्रो। ठीक है, ठीक है, पेरिडोडाइट। तो याद रखना कि सिलिकेट्स का यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कि रिक्टर मैग्नीट्यूड इज बेस्ड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, अच्छा स्टेटमेंट इसमें से सही आंसर चूज। ठीक, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड इज बेस्ड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट सिस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है। एन अर्थक्वेक विल रिक्टर मैग्नीट्यूड 7 10 times larger distance on the seismogram than division एस वेव ट्रेवल फास्टर देन द पी वेव थ्रू सॉलिड मीडियम। नहीं, ये अपोजिट बात कर दिया है। कौन सा सही होगा, ए और बी। ठीक है, तो रिक्टर स्केल सबको पता है, ये लार्जेस्ट सिस्मिक वेव जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसको उसके एम्पलीट्यूड के आधार पर होता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है। ठीक,
कौन डेवलप किया था रिक्टर स्केल? उनका नाम था चार्ल्स रिक्टर। ठीक है, चार्ल्स रिक्टर। ठीक है, और जो जहाँ पे सिस्मोग्राफ पे जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? वुड एंडरसन एडरसन। ठीक है, वुड एंडरसन सिस्मोग्राफ, वुड एंडरसन सिस्मोग्राफ। उसके बाद ये क्यों 10 टाइम्स ज्यादा करता है? ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करें। ये लॉगरिथमिक है। ठीक है, ये रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक है। मतलब कि अगर होल नंबर एक से इंक्रीज करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड मतलब 10 टाइम्स 10x इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और अगर एनर्जी रिलीज में बात किया जाए, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड का बात। अगर एनर्जी रिलीज में किया जाए बात, तो ये लगभग कितना? 31.6x टाइम्स है। ठीक है, मतलब कि अगर 6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अगर आता है रिक्टर स्केल पे और एक 7 है, तो 7 में कितना टाइम ज्यादा हो गया? 31.6 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होता है। उसके बाद है कि एस वेव्स। एस वेव्स नहीं, प्राइमरी वेव्स जो होता है वो ट्रेवल फास्टर करता है सेकेंडरी वेव से इन एनी मीडियम। ठीक है, एज पी वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स होते हैं दैट ट्रेवल एट स्पीड टिपिकली बिटवीन 5 to 7 किलोमीटर इन अर्थक्वेक। इसीलिए जब भी अर्थक्वेक होता है, ठीक है, मतलब कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है, तो पी वेव्स जो सिस्मिक स्टेशन में पहले आते हैं, फिर उसके बाद एस वेव्स आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ डेरिटल सेडिमेंट्री लॉ? तो डेरिटल सेडिमेंट्री लॉस का कौन सा एग्जांपल इसमें से नहीं है, हमें ये बताना है। मतलब नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेरिटल सेडिमेंट्री रॉक। तो पहले जानना है कि डेरिटल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। तो फॉर्म फ्रॉम accumulation and lithification of rock fragments, minerals, grains or other particles transported by water, wind और ice। ठीक है, ऐसे में डेरिटल को ही क्लास्टिक बोलते हैं, क्लास्टिक प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये कैसे होता है? एक्यूमुलेशन होता है और लिथिफिकेशन होता है किस चीज का? रॉक फ्रेगमेंट्स का, मिनरल्स का, ग्रेन्स का, दूसरे पार्टिकल जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वाटर, विंड या आइस के द्वारा। तो सैंडस्टोन होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। तेल होगा, बिल्कुल होगा। कंक्रीट होगा। चौक नहीं होगा, चाक नहीं होता। ठीक है, तो चौक नहीं होता क्यों? क्योंकि ये क्या है? चाक। ठीक है, तो चाक जो हमारा वो है, वो हमारा एक्यूमुलेशन होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये किस चीज से बनता है? एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, रिमेन्स, माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स से जो मराइन इन्वायरमेंट में थे उनके माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स से बना है। ठीक है, खासकर मराइन अलगे से। ठीक है, ये बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक है, ना कि डिजिटल सेडिमेंट्री रॉक है। तो कैसी माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स किसके? माइक्रोस्कोपिक, तो मरीन एल्गे के, जिसको क्या बोलते थे? कोको लिथोपोर्स। ये थे मराइन, ठीक है, एल्गे, इनके एक्युमुलेशन से बना है। ठीक है, तो बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब इनके जो सेल्स होते थे, क्या इनके जो कैल्साइट सेल्स होते थे, उसके एक्युमुलेशन से मरीन इन्वायरमेंट में भी बना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर इन इंग्लैंड। तो वो पूरा का पूरा चौक है। उसके बाद सेल, तो सेल तो फाइन ग्रेन डिजिटल सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये भी डिजिटल है। और कॉन्ग्लोमरेट तो कोर्स ग्रेन डिजिटल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक हमेशा याद रखना है कि बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन प्रोसेस 3 तरह का होता है। पहला डिजिटल, इसके एग्जांपल पढ़ लिए, मतलब कि वो कैरी ट्रांसपोर्टेड किए गए मिनरल्स बाय वाटर, आइस, विंड के द्वारा। ठीक है, रॉक फ्रेगमेंट्स मिनरल्स, और वो अक्यूमुलेट हुए हैं, फिर लिथिफाइड हुए हैं और वो बन गया। उसके बाद दूसरा है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, केमिकल क्या है? कि फॉर्म फ्रॉम मिनरल्स प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन था, उसमें से वो प्रेसिपिटेट कर गया और उससे वो बने हैं, जिसका एग्जांपल है सबसे बड़ा रॉक सॉल्ट। ठीक है, हेलाइट्स। तो वो क्या होता है? केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स है। और उसके अलावा फिर क्या है? उसके बाद क्या है? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब इसमें बायोलॉजिकल लाइफ का कहीं ना कहीं यूज है।
ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का और थ्रू ऑर्गेनिक प्रोसेस, या तो ऑर्गेनिक प्रोसेस से बना है ऑर्गेनिक एलिमेंट से बना है, तो चॉक उसी में आएगा। ठीक है, चलते नहीं। ठीक है, ये बायोकेमिकल, ये केमिकल सिंथेसिस, सेल साइड स्केलेटन का माइक्रोन फोर्स। ठीक है, ये वेदरिंग ट्रांसपोर्ट से नहीं होता, प्रीसिस्टिंग रॉक फॉर्मेट से नहीं होता है, तो क्योंकि इसीलिए डेटिरेटस बोलते हैं। ठीक है, सैंडस्टोन, सैंड पता है, क्ले साइज सिल्ट से बना होता है, कॉन्ग्लोमेरेट राउंडर ग्रेवल से बना होता है। अच्छा ये रहा, तो इसमें हमें मैच करना है। ठीक है, तो पहला है हेलिक्स, हेलिसिटिक। तो ये मिनरल टेक्सचर क्या होता है, ट्विस्टेड कर्व और स्पायरलिंग होता है। ठीक है, सिमिलर टू कोरल ब्रांचेस। तो एक का फोर, उसके बाद है मिकासियस। तो मिकासियस, ठीक है, शीट लाइक होते हैं, लेयर्ड होते हैं, जिससे माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं ना, उसी का माइकेसियस उसी ग्रुप ऑफ मिनरल्स की तरह ही होता है। ठीक है, शीट लाइक। और इसके कारण से, शीट लाइक होने के कारण से ये आराम से इसको स्प्लिट कर सकता है थिन शीट्स में या लैमेले में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ओवरलाइट क्या होता है, तो ये स्मॉल स्फेरिकल या इलेप्टिको इलिप्सोडाइल इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, इनका क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इलिप्सोइड्स और स्फेरॉइड्स। उसका होता है स्टेलेट। स्टेलेट तो हो गया वो जो स्टार लाइक सब अरेंज होता है। ठीक है, क्योंकि जो लैटिन मीनिंग ये स्टेला, स्टेला मतलब स्टार। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज होते हैं किस में, रेडिएटिंग पैटर्न में, जो कि स्टार की तरह रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनको स्टेलेट बोल दिया, स्टेलेट बोल दिया गया। ठीक है, एरो लाइक स्टार, ये है। The next, identify the correct sequence of the given texture. Identify the correct sequence of given soil texture classes in decreasing order. Stability of the wheat clods. ठीक है, इनको हमको वेट क्लॉट्स के हिसाब से तो अरेंज करना है, उनके स्टेबिलिटी के हिसाब से। तो इसमें सबसे ज्यादा, इसमें सीधा हमें जानना है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा क्ले होगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा हाई क्ले कंटेंट होगा, हाई मतलब क्ले कंटेंट जिसका ज्यादा होगा, क्ले कंटेंट जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा ही स्टेबिलिटी होगा वेट क्लॉट्स में। ठीक है, क्योंकि वेट क्लॉट्स क्या होता है, उनका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे क्ले कंटेंट जैसे डिक्रीज होगा, उनका स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसमें क्ले का पार्टिकल्स है वो कोहेसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि सॉइल को होल्ड करके रखता है। ठीक है, जब वो वेट होता है, तो उसी को वेट क्लॉट्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा वेट, तो सबसे ज्यादा क्ले का होना चाहिए, क्योंकि क्ले तो पूरा ही क्ले है। ठीक है, अच्छा, ओ इसमें क्वेश्चन छूट गया, कोई नहीं, यहाँ पे हम करें। तो वही, तो सबसे पहले क्यों होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्ले के साथ लोम आ गया, सिल्ट आ गया थोड़ा सा, क्ले के साथ थोड़ा सा सैंड आ गया तो लोम बन गया, ये हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा सिल्ट लोम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। उसके बाद क्या आ जाएगा, लोम आ जाएगा, उसके बाद क्या, सैंडी लोम, मतलब ज्यादा इसमें सैंड हो, तो ये हमारा वेट क्लोड्स बनेगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एट ए लोकेशन कैरेक्टराइज बाई लैटिट्यूड 30 डिग्री, ठीक है, प्रेशर इज फाउंड टू बी vary by 1 millibar over a distance of intensity of air mass is 1.2 kg per meter cube. The geostrophic wind velocity is, यहाँ पे हमें geostrophic wind velocity निकालना है। तो क्या आएगा, तो इसका देखते हैं। इसका ये स्टेप, ठीक है, मैंने पूरा डिटेल दिया है। लैटिट्यूड कितना, 30 डिग्री, प्रेशर कितना है,
डिस्टेंस इतना, एयर डेंसिटी है। तो जियोस्टैटिक विंड डिटरमाइन बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स और कोलियस फोर्स। ये याद रखना, ये ऑप्शन में पहले आया है फिर आया है। ये जियोस्टैटिक विंड वेलोसिटी डिटरमाइन बैलेंस बिटवीन पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स। फॉर्मूला क्या है कि Vg इक्वल टू Pf 1 इंटू डेल्टा पी। तो Vg का जियोस्ट्रोपिक विंड स्पीड, ठीक है, रो क्या है तो एयर डेंसिटी, ठीक है, एफ क्या है कोलियस फोर्स, और ये क्या प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज कितना होता है 1 मिलीबार, तो 1 मिलीबार को क्या लिख सकते हैं 100 पास्कल। 1 मिलीबार की 100 पास्कल होता है। डिस्टेंस क्या 100 किलोमीटर, तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 100 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ मीटर, 1 इंटू 10⁵मीटर, ठीक है, इसको 10⁵मीटर। एयर डेंसिटी 1.25 kg पर मीटर क्यूब, ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है जो हमारा एयर डेंसिटी है। अब कोरियोलिस पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी अर्थ पे क्या है 7.292 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री पर सेकेंड। लैटिट्यूड क्या 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होगा 0.5, तो एफ कितना हो जाएगा 7.9 इंटू 10⁻5 मीटर 10⁻⁵ पर सेकेंड। उसके बाद अब हम पीजीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, दिया जाएगा 1 इंटू 10⁻³ पास्कल पर मीटर। अब इस वैल्यू में सबको पुट कर लेंगे। 1.2 पर मीटर क्यूब इंटू 7 इंटू 1 इंटू 10⁻³ पास्कल पर मीटर। तो ये सबको सॉल्व करेंगे तो 10.9 मीटर पर सेकेंड यानी कि 11 के आसपास आएगा। ठीक, चलते नेक्स्ट। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ इज द फारदेस्ट फ्रॉम सन एट द टाइम ऑफ पेरिहेलियम। अर्थ इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट द टाइम ऑफ पेरिहेलियम। तो ये तो गलत बात है। When perihelion occurs, it is winter in the north. ये सही बात है, जनवरी में होता है। Seasons of the earth occur due to inclination of earth on the, ठीक है, axis, ये सही बात है। आंसर क्या हो गया बी और सी, ठीक है। ये है अपना, ठीक है। पेरिहिलियन कब होता है जब नजदीक होता है, तो जनवरी 3 या 4 को। अपेरिहिलियन मतलब जब दूर होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है ना अंतर, तो वो जुलाई में होता है। ये तो बहुत ही चलते हैं नेक्स्ट। नेशनल रिवर कहाँ से निकलती है, ओरिजिन ऑफ नेशनल रिवर कनाई गोमुख, भागीरथी खारक नहीं, ये तो ग्लेशियर लेक है, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। चौखंबा पीक नहीं, ये भी पीक है मतलब गंगोत्री ग्रुप नहीं, बट ये नहीं, ठीक है। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, ठीक है, जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, और जो कि फिर भागीरथी से आके देवप्रयाग में मिलती है, फिर वहां से गंगा होती है, ठीक है। ये पिंडार रिवर हो गया, ये अलकनंदा, ये भागीरथी, ठीक है, ये फिर यहाँ से यह जो मिलता है देवप्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट। द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच ऑफ टॉप सोइल, ये तो फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। ये है 100 से 400, ये, ठीक है, ये 100 से 400 ये लगभग, ठीक है, 1 इंच सोइल का इतना समय लग जाता है। और मतलब कहीं कहीं थोड़ा पहले भी हो जाता है, मतलब समझो 100 में हो जाता है, डिपेंड करता है ना। अगर क्लाइमेट वार्मर है तो वेटर है तो वो सॉइल फॉर्मेशन फास्ट होगा। अगर सॉफ्टवेयर पैरेंटल मटेरियल है तो उसको इजिली वेदर करना आसान है, तो वो फास्टर होगा, सिंपल सी बात है। अगर टोपोग्राफी फ्लैट है तो वहाँ पे आसानी से डेवलप होता है सॉइल, ठीक है। स्टीप स्लोप पे क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप हुआ वो इरोड हो जाता है, स्टीप स्लोप में थोड़ा सा सॉइल वो इरोड होकर नीचे आ गया, तो फ्लैट है तो इरोड हुआ तो वहीं पे चिप है। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसलिए प्लांट्स और एनिमल ज्यादा, एनिमल लाइफ ज्यादा है तो सॉइल फास्टर होगा। फिर ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन का एक्सलेट भी हो सकता है, डिग्रेड भी हो सकता है सॉइल फॉर्म, ठीक है।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, यूएसडीए, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज अल्टेन बिटवीन, तो साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल का क्या रेंज करता है, वो करता है हमारे 0.002 से 0.05 mm। ठीक है, ये हमारा रेंज है सिल्ट का। तब इसका हम अगर रेंज कोई चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐड किया हो नहीं, पूरा तो ऐड नहीं है। ठीक है? ये है अपना ट्रायंगुलेशन। ठीक है, जो ट्रायंगुलेशन है यूएसडीए का, ठीक है, ट्रायल टेक्सचर ट्रायंगल, ये है कि ये इधर क्ले परसेंट बढ़ रहा है, इधर सिल्ट घट रहा है, सिल्ट इधर बढ़ रहा है, इधर सैंड बढ़ रहा है। अगर सैंड है बहुत ज्यादा और क्ले एकदम नहीं है तो पूरा का पूरा सैंड है। अगर सिल्ट बहुत ज्यादा है और सैंड बिल्कुल नहीं है तो सिल्ट है। अगर सिल्ट आ गया और सैंड सैंड आ गया तो सिल्ट टोम हो गया। ठीक है, अगर इसमें क्ले भी है सिल्ट भी है तो क्ले सिल्ट लोम हो गया। तो इस ट्राइंगल के आधार पर उन्होंने बांटा था। ठीक है, तो क्ले का अगर देखें, ठीक है, तो वो कितना होता है, लेस देन 0.002 mm, मतलब 2 माइक्रोमीटर। सिल्ट का होता है 0.002 से 0.05 mm। ठीक है, यूनिट याद रखेंगे mm। सैंड का हो गया 0.05 से 2 mm। अब जैसे सैंड में है ना, कई तरह के सैंड होता है, इसी के टाइप से एक हो गया वेरी फाइन, वेरी फाइन हो गया 0.05 से 0.10। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा फाइन, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, फाइन सैंड, आगे सैंड है। ठीक है, सैंड याद रखिए 0.10 से 0.25। फिर मीडियम सैंड हो गया, मीडियम कितना हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे तो बेटर है, 0.25 से 0.5। लॉजिकली याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कि फाइन 0.05 से 0.1 है, फिर यहाँ जहाँ से एंड हुआ वहीं से ये फाइन हो गया, वेरी फाइन, फाइन, मीडियम। ठीक है, कोर्स कहाँ से शुरू होगा, तो 0.50 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 100 तक। अब इसके आगे हमारा वेरी कोर्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोटा। तो इसका तो सिंपल सा है कि 1 mm से कितना था ऊपर सैंड का टूथ, तो 1 से 2 तक। और इसके ऊपर जो हो जाता है उसको बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल का कितना हो गया, ग्रेटर देन 2 mm। तो ये एक है, देख लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट, ये ट्रायंगल है, टेक्सचर सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल है, जस्ट ये। फिर उसके बाद भी फिर एक एफसीएम भी ये सवाल एक आया था, सेम सवाल, और इसका आंसर क्या होगा 0.05 एम टू 0.0। ये लगातार आए थे उस 21-22 में, सेम बात है यहाँ पे। अब the strong and rapid moving circumpolar upper air westerly circulation in narrow belt of few hundred kilometers width in the upper limit of the troposphere is called, क्या बोलते हैं उनको, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो जेट स्ट्रीम क्या है, कि स्ट्रॉन्ग रैपिडली मूविंग सरकमपोलर अपर वेस्टर्ली सर्कुलेशन, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब ये ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेस्ट, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, इन नैरो बेल्ट ऑफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर का विद और अपर लिमिट और ट्रोपोस्फेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास होता है। ठीक है, ये टिपिकली 9 to 60 किलोमीटर के डिपेंड करता है, जैसे इक्वेटर 9 to 60 किलोमीटर के आसपास ये करते हो उसी रेंज में। ठीक है, ये ट्रोपोपॉज के पास होते हैं एकदम, एकदम बहुत ऊपर। ठीक है, और ये आसानी से कितने स्पीड तक पहुंच जाते हैं 120 से। ठीक है,
मतलब मान के चलो माइल्स पर आवर 250, मतलब मान के चले कि अगर करें 190 से 400 किलोमीटर, कितना फास्ट है, बहुत फास्ट है मतलब। सही। ये दो होते हैं, एक होता है पोलर जेट जो कि दिख रहा है फिगर में, और दूसरा क्या होता है सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे चलता है, सब ट्रॉपिकल जेट, ठीक है, जो कि 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास चलता है। तो ये हमारा जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस क्या चीज पे होता है, तो वेदर पैटर्न पे, ये वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसका बाउंड्री बनाता है कोल्ड और वार्म एयर मास के बीच में, जैसे कि इधर बहुत ज्यादा ठंडा हवा हो गया, इधर गर्म हवा आ गया, बीच में ये आ गया तो क्या था, इधर के हवा को बीच और इधर के हवा के बीच बाउंड्री बन गया, ठीक है। इनस्टेबिलिटी करता है, टर्बुलेंस करता है। फ्लाइट को भी, फ्लाइट टाइम को करता है, क्या बोलते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं लगभग वो भी ट्रोपोपॉज के आसपास उड़ते हैं, अपर ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जैसे कि सपोज कि कोई यहाँ से फ्लाइट उड़ी ये जगह से, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे से फ्लाइट उड़ी और अगर इसके चपेट में आ गई, तो उसका, और यहाँ पे पहुंचने का समय सपोज 1 घंटा है, यहाँ उसको यहाँ पे पहुंचना था ये जगह पे, और ये जगह से उड़ी थी। अगर यहाँ पे 1 घंटे में पहुंचने का था, तो हो सकता है कि इसके चपेट में आ जाएगी तो पूरा स्पीड बढ़ गया, टेल विंड मिल गया, तो 45 डिग्री, 45 मिनट्स नहीं पहुंची। लेकिन अगर सपोज कोई इधर से जा रहा अपोजिट में, उसको 1 घंटा पहुंचना था तो उसको 1.5 घंटे लग गया, ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जाने में रिस्क भी है, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली अवॉइड करते हैं, जाते समय तो चले जाते हैं लेकिन पावर सिस्टम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात क्या करता है, रोशनी वेव। तो रोशनी वेव कुछ नहीं है, रोशनी वेव जो ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है, और वो जो वेव लाइक पैटर्न में, जैसे ये जेट स्ट्रीम है ना, ये जो पैटर्न बनाया हुआ है इसको रोशनी वेव बोलते हैं। इस पैटर्न का नाम है रोशनी वेव, ठीक है तो ये जेट स्ट्रीम है लेकिन ये करंट का नाम नहीं है, ये इस पैटर्न का नाम है, ठीक है। रोशनी वेव्स, इनको कार्ल गुस्ताफ रोसबी ने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद है वॉकर स्ट्रीम्स। तो वॉकर स्ट्रीम्स कुछ टर्म होता नहीं है, वॉकर सर्कुलेशन होता है, सबको पता है। और हेडलेस सर्कुलेशन क्या है, तो हेडलेस सर्कुलेशन है कि जो हमारा ग्लोबल स्केल ट्रॉपिकल जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है, जहाँ की हवा यहाँ पे राइज करती है इक्वेटर पे, फिर यहाँ सिंक करती है, ठीक है, इधर जाती है, इधर जाती है, ठीक है, फिर यहाँ से राइज करती है हवा, इधर सिंक करती है। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ठीक है, वो उसको वो दर्शाता है, कौन, हेडली सर्कुलेशन, कि इक्वेटर, ठीक है, एयर कैसे पोलवार्ड फ्लो करते हैं इक्वेटर से पोलवार्ड की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट। ये जेट स्ट्रीम में जैसे जा रहा है, ये स्पीड है, ठीक है, ये कोल्ड एयर हो गया, ये वार्म एयर हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, कोरियलिस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कोरियलिस इफेक्ट क्या होता है, ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस है अर्थ रोटेशन का, विच टेंड्स टू टर्न एयर टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो ये हमारा राइट है, अगर यहाँ खड़े होकर इधर की तरफ देख रहे हैं तो ये हमारा राइट है। जब ये हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो ये हमारा राइट, यहाँ भी देख, कहीं भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्टी ग्राउंड वाटर अलोंग शोरलाइन सी डिटरमाइंड बाय, ठीक है। ये किसके द्वारा हमारा डिटरमाइंड किया जाता है, ठीक है, फ्रेश और सॉल्ट वाटर के बीच का बाउंड्री। तो इसका आंसर होगा रिचार्ज एंड डिस्चार्ज इन फ्रेश वाटर इक्विपमेंट,
कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, रेनफॉल, नेचर, तो रिचार्ज और डिस्चार्ज, ठीक है। जो फ्रेश और सॉल्टी ग्राउंड वाटर जो होता है रोड लाइन्स के किनारे, उसमें क्या होता है, उसको फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर इंटरफेस बोलते हैं, या फिर सॉल्ट वाटर वेज बोलते हैं, सॉल्ट वाटर वेज, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही क्रिटिकल जोन है हाइड्रोजियोलॉजी का, टॉपिक हम पढ़े थे ना हाइड्रोजियोलॉजी, ठीक है। और कोस्टल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है ये, क्या बोलता है इसका डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना रिचार्ज और डिस्चार्ज होता है फ्रेश वाटर एक्वीफर, उसके कारण क्या होता है कि उसके बीच का जो बाउंड्री होता है वो बना रहता है, ठीक है। कि बैलेंस कितना है फ्रेश वाटर और रिचार्ज फ्रॉम इनलैंड एरिया, और रेट डिस्चार्ज कितना हो रहा है एक्वीफर से सी में, और इस रिलेशनशिप को गवर्न कौन करता है, तो जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, डाइवन अर्बन हजबल हजबल प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या बोलता है कि एक फॉर एवरी फुट ऑफ फ्रेश वाटर दैट सिट्स अबव सी लेवल देयर अप्रोक्सीमेटली 40 फीट्स ऑफ फ्रेश वाटर बिलो सी लेवल, मतलब जो रेशियो है अबव सी लेवल और बिलो सी लेवल का फ्रेश वाटर का 1:40 का, मतलब 1 फीट, अगर 1 फुट फ्रेश वाटर वाटर अगर ऊपर है सी लेवल के ऊपर, तो मतलब 40 फीट फ्रेश वाटर सी लेवल के नीचे है, ठीक है? ये क्यों है, क्योंकि सॉल्ट वाटर क्या है 2.5% डेंसर है फ्रेश वाटर से, ठीक है। तो जब फ्रेश वाटर रिचार्ज उस एरिया में एबंडेंट है, खूब हो रहा है, तो वाटर टेबल हाई रहता है कि ठीक है, मतलब ग्रेटर हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है, वाट सॉल्ट वाटर इंटरफेस सीवार्ड की तरफ होता है, ठीक है। मतलब कि बाहर यहाँ से पानी जो क्या बोलते हैं एक्यूफर है वो सॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन जब फ्रेश वाटर डिस्चार्ज एक्सीड कर जाता है रिचार्ज को, मतलब कि वहां से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं या फिर ड्रॉट के समय या किसी पंपिंग समय, तो जो इंटरफेस है वो इनलैंड की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये होता है जमीन की तरफ, जैसे कि सपोज कि ये है, ये समुंदर है, ये नीचे ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे पानी आता रहता है। तो नॉर्मल के दिनों में जब ज्यादा इधर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब रिचार्ज हो रहा है पानी, ठीक है, ये पानी है, तो ये बना हुआ है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लेवल है ऐसे बना हुआ सपोज। लेकिन जब ये पानी इसमें कम हो जाता है, तो ये लेवल कहाँ से आ जाएगा, ये लेवल यहाँ तक आ गया, तो अब इस एरिया में कोई पंप लगाया है सपोज, तो उसको क्या मिल रहा है, सॉल्ट वाटर, इसी को बोलते हैं सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। चलते हैं नेक्स्ट। बसाल्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स, बसाल्ट में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इसका आंसर क्या होगा कि ओलिवाइन होता है, पायरोक्सिन होता है, क्वार्ट्ज नहीं होता है, ऑर्थोक्लेज नहीं होता है, कलेजियोक्लेज होता है। तो बसाल्ट क्या है, सबसे पहले जानना बसाल्ट क्या है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मतलब ग्राउंड के ऊपर जब मैग्मा आ जाता है, लावा वो कूल डाउन होता है, ठीक है, उसके बाद रैपिड कूलिंग होता है, और ये रैपिड कूलिंग से बनता है लावा रिच। लावा किस चीज में रिच होना चाहिए, मैग्नीशियम और आयरन में, इसमें रिच होता है, तो बसाल्ट बनता है, ठीक है, फास्ट कूलिंग से। तो ओलिवाइन होता है, बताइए, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट मिनरल है, ठीक? उसके बाद पायरोक्सिन है, ये भी इन इन ऑसिल सिलिकेट है, ठीक है, इसमें कैल्शियम सोडियम आयरन मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आ गया बात, ठीक है, प्लेजियोक्लेस का, ये भी मतलब कैल्शियम सोडियम फेल्सफर है, ठीक है, तो ये बनता है। तो बसाल्ट फॉलो मिनरोलॉजी प्रेडिक्टेड बाय बोवेन्स रिएक्शन सीरीज में पेड किया उसको फॉलो करता है, और उसमें मिनरल क्रिस्टलाइज एट हाइयर टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होता है, जैसे कॉलीवाइन हो गया, कैल्शियम रिच पेलियोग्लिक्स हो गया, पायरोसिन हो गया। और क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज क्या होता है, मेक्स होता है, वो मिनरल्स फॉर्म्स एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम मोर इवॉल्व सिलिका रिच मैग्मा से बनते हैं। तो इसीलिए जो ओशन फ्लोर है ना हमारा, वो मोस्टली बसाल्ट का है, क्यों, क्योंकि वो तुरंत कूल डाउन होता है और हाई टेम्परेचर पे बनता है। ये हमारा वाला है। तो इसमें देखें, ओलिवाइन है, थायोक्सिन है, ठीक है, और ये सब बहुत ही कम टेम्परेचर पे बनते हैं, इसीलिए ये सब आराम से
ठीक है, बसाल्ट में नहीं आता है। तो इन द फॉलोइंग यूनिट्स इंक्रीज ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ वेदरिंग। तो ये जस्ट उल्टा है, ठीक है। अभी हमने बाउंस देखा ना, बाउंस सीरीज, उसका जस्ट उल्टा है, इसको बोलते हैं गोल्डी डिश डिसोल्यूशन सीरीज। इस वेदरिंग वाले को गोल्डिच गोल्डिच डिसोल्यूशन सीरीज इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट उल्टा है। अभी हमने क्या देखा था, पहले एक बार देख लेते हैं फिर से। कि नीचे की तरफ ऊपर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसी इतने टेम्परेचर पर ये क्रिस्टलाइज हो गया, हाई टेम्परेचर पे। और जो क्वार्ट्ज है ये सब लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। तो वेदरिंग का जो है जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। मतलब जो लो टेम्परेचर पे हुआ है वो सबसे बाद में वेदर करेगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले ये वेदर करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और ये बहुत ज्यादा मजबूत होंगे क्वार्ट्ज ये सब, ठीक है। तो आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं पहले। इसका हो जाएगा, पहले है कैल्साइट आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ज्यादा स्टेप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ कैल्साइट सबसे होगा। उसके बाद आएगा ओलिवाइन, उसके बाद आ जाएगा ये कैल्शियम रिच फेल्सपर, उसके बाद आ जाएगा सोडियम रिच फेल्सपर, उसके बाद हमारा आ जाएगा इलाइट, ठीक है। तो हमारा कैल्साइट है, कैल्साइट क्या है, ये रेजिस्टेंट है फिजिकल वेदरिंग के, ठीक है। बट ये रेडिली जो कैल्साइट डिजॉल्व हो जाता है स्लाइटली एसिडिक वाटर में, ठीक। उसके बाद ओलिवाइन है, ठीक। ये भी केमिकल वेदरिंग से बहुत ही सस्टेनेबल है। उसके बाद है कैल्शियम रिच फेल्सपर, ठीक है। ये सोडियम रिच जो वेराइटी है उससे ज्यादा तेजी से वेदर करता है, ठीक है। उसके बाद जो सोडियम रिच हो गया। उसके बाद इलाइट, इलाइट तो ऑलरेडी वेदरिंग का एक प्रोडक्ट है, इसलिए वो केम मिनरल्स जो होते हैं इलाइट के, वो स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ सिलिकेट है वेदरिंग के, ठीक है। तो इनको बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वेदर करके बने हैं। फर्दर ब्रेक डाउन करना सबसे इलाइट्स को। एक लिस्ट है, मतलब विजिबिलिटी के आधार पे तो डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जो ऊपर ज्यादा डिक्रीज करने का चांसेस ज्यादा है, जो नीचे है उसका कम है। तो एक लिस्ट है, इसको याद नहीं करना है एकदम एग्जैक्ट से कि रख ले, एक आइडिया होना चाहिए, बार बार देखें चार पांच बार तो एक आइडिया रहेगा। चलते नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, टू, a confined aquifer is a aquifer which is confined between two impervious beds such as aquiculets or aquifers, ठीक है। recharge of this aquifer takes place only in the area where it is exposed at the ground surface। तो पहला बात भी सही है और दूसरा बात भी सही है, तो आंसर क्या जाएगा स्टेटमेंट वन एंड तो होता है, जो एक्यूफर होता है कन्फाइंड एरिया ही होता है, ठीक है। जो कन्फाइंड एक्यूफर होता है वही होता है कि दो बाउंडेड एबव और बिलो इम्परमिएबल या फिर नियर इम्परमिएबल मटेरियल से वो रहता है, ठीक है। जिसको कि एक्यूकुलेट्स या एक्यूफ्यूगेस, ठीक है, बोलते हैं। उस लेयर के मतलब वाटर मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब या तो नहीं जाएगा या फिर बहुत ही एकदम सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड वाटर, ठीक है। और ये ऐसे कन्फाइंड एक्यूपर्स प्राइमरी रिचार्ज का है जहाँ पे ये एक्यूपर फॉर्मेशन एक्सपोज होता है सरफेस पे, ठीक है। उसको रिचार्ज जोन बोलते हैं या इंटेक एरिया बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं ये कन्फाइंड एक्यूपर्स के। तो इनका जो प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो जहां भी ये थोड़ा भी छेद उद किए, पंप अप किए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। दूसरा है कि जब इसमें, हाँ, तो वाटर आ जाता है, जिसको कि हम आर्टिसियन 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 कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिसियन कंडीशन बोलते हैं जब प्रेशर सफिशिएंट होता है वाटर को फ्लो करने के लिए सरफेस पे विदाउट पंपिंग, बिना पंप किए
इसको क्या बोलते हैं? फ्लोइंग आर्टिसियन वेल बोलते हैं। ठीक है, ये सरफेस कंटामिनेशन के लिए लेस ससेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली कन्फाइंड है, एक्सेप्ट इन रिचार्ज जोन, जहां पर इच्छा वहां पे हो सकता है। तो ये है, ये रिचार्ज एरिया, ये कन्फाइंड एक्वीफर है, ये रिचार्ज एरिया हो गया। यहाँ पे मतलब पॉल्यूशन होने के चांसेस है, और बाकी जो सब जगह पैक है एकदम। ये हो गया फ्लोइंग वेल इन कन्फाइंड एक्वीफर, यहाँ तक हम वेल किए, ये अपने आप फ्लो कर रहा है। ये नॉन फ्लोइंग वेल है, ठीक है, इन कन्फाइंड एक्वीफर। क्यों? क्योंकि पानी यहीं, मतलब प्रेशर डिफरेंस जो था उसके कारण पानी यहीं तक ऊपर आ पाएगा, थोड़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे, इसलिए यहाँ पे पानी आ गया। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक डिफरेंस, प्रेशर जो डिफरेंस है उसके कारण है। ये अनकन्फाइंड एक्वीफर में वेल है, तो वहां तो और नहीं आएगा, यहाँ तो मोस्टली समझे पंप ही करना पड़ेगा। चलते नेक्स्ट। इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मेंटल इज मोस्टली मेड अप। मेंटल किस चीज का बना हुआ है? ठीक है, तो मैग्नीशियम और आयरन का। मोस्टली मेंटल किस चीज का बना हुआ है? मैग्नीशियम और आयरन का। चलते नेक्स्ट। यहाँ पे ये करना, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो आइसोबार्स क्या है? द लाइन कनेक्टिंग इक्वल प्रेशर। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? लैंड से मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी। सीवीज क्या है? सी से लैंड। गाइड्स क्या है? ओशन करंट्स विथ सर्कुलर फ्लो। इसके आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? टू। गाइड्स क्या होते हैं ये सब कहते हैं, ठीक है, कई लोग जाट से पढ़ते हैं, बस गाइड्स ही है ये, तो वो हम पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट। बस थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, सबके। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से छोड़ दिया, तो यू कैन रीड। उसके बाद है, इसको मैच लिस्ट करना है और इनका इससे मैच करना है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल हजार्ड्स क्या हो जाएगा? तो उसमें सुनामी आएगा। तो लोग कहेंगे पानी में होता है, वो तो मेट्रोलॉजिकल है। नहीं भाई, ये ट्रिगर कौन करता है? जो इससे अर्थक्वेक करता है, वोल्केनो करता है, तो वो सब क्या जियोलॉजिकल हजार्ड्स है। तो सुनामी उसी में आएगा। केमिकल हजार्ड क्या हो गया? तो केमिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। हाइड्रोमेट्रिकल हजार्ड क्या हो गया? ड्रॉट, सूखा, पानी नहीं पड़ा। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या हो गया? पैंडेमिक। ठीक है, चलते नेक्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़े आसान आसान से। अब यहाँ पे क्या है? Absolute humidity in atmosphere is 10 at 10 centigrade 5 gram per meter cube. Maximum amount of water air can hold at the same time 10 gram. और what will be the relative humidity at same temperature? तो RH हमें निकाला। RH इक्वल टू क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ल्यूट H लिख रहा हूँ ह्यूमिडिटी के लिए, डिवाइडेड बाई मैक्स H। ठीक है, उसी टेम्परेचर पे दोनों, ठीक है, सेम टेम्परेचर लिखा है ना, सेम टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री पे इंटू 100%। तो एब्सोल्यूट कितना था? 10 था। नहीं, एब्सोल्यूट नहीं था, सॉरी, 10 नहीं, कितना? 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम। एब्सोल्यूट कितना? 5 ग्राम बाई 10 है, इंटू 100%, इक्वल होगा 0.5 इंटू 100% इक्वल टू 50%। तो आर एच कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि दिखाता है कि अफेक्ट्स कि हाउ क्विकली वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सरफेस अपने स्किन से भी हमारे। उसका क्या इन्फ्लुएंस करता है कि कितना कंफर्टेबल हम फील करें। अगर बहुत ज्यादा आर एच है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, तो उस दिन बहुत ही गर्मी फील होगा, अजीब सा फील होगा, चिपचिपा होगा, क्योंकि जो हमारे स्किन से ना वाटर इवेपोरेट क्विकली नहीं होगा, आर एच ज्यादा होगा तो हमें बहुत ही अनईजी भी फील होता है उसका क्या है, ये डिटरमाइन करता है लाइक्लीहुड प्रेसिपिटेशन, मतलब जितना ज्यादा आर एच मतलब 100% है तो चांसेस बारिश के बहुत ज्यादा है। उसके बाद प्लांट ट्रांसपिरेशन रेट्स और वाटर नीड्स को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो लिखा वो क्या है? वो एक्चुअल अमाउंट वाटर वेपर कितना है गिवन एयर में। ठीक है, ये मतलब जो गिवन एयर पार्सल था उसमें 5 ग्राम पर मीटर क्यूब 10 डिग्री पे एब्सोल्यूट था। ठीक है,
मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, वार्म एयर में ज्यादा मॉइस्चर रह सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर इससे बढ़ेगा, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, एयर जो कूल होता है वो ड्यू पॉइंट में होता है, वहां से फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, मतलब कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर और मॉइस्चर कैपेसिटी जो है उसको रिलेशनशिप, ठीक है, कौन फॉलो करता है? एक्सपोनेंशियल कर, ठीक है, लीनियर वन नहीं, एक्सपोनेंशियल। चलता है नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अच्छा, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन से, प्री कैम्ब्रियन पहला है ना, तो ये अर्लीस्ट और लॉन्गेस्ट पीरियड है अर्थ हिस्ट्री का, तो ये किससे मैच करेगा? तो प्रोटेरोजोइक। तो क्योंकि इसमें तीन होते हैं, प्री कैम्ब्रियन में तीन होते हैं, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। तो ये प्री कैम्ब्रियन जो है, प्री कैम्ब्रियन, उसमें से सबसे रिसेंट इवन कौन सा है? वो है प्रोटेरोजोइक। दो और इससे पुराने कौन है? आर्कियन और हेडियन। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया था एटमोस्फेयर में। ठीक है, ये लगभग 2.5 बिलियन ईयर एगो की बात है, से लेके 541 मिलियन ईयर ईगो तक ये पीरियड होता है। उसके बाद पैलियोजोइक। पैलियोजोइक कौन सा पीरियड हो गया? ठीक है, ये 541 मिलियन ईयर से 251.9 मिलियन ईयर्स ईगो तक। यहाँ पे कहते हैं इस पीरियड में डाइवर्स मारीन लाइफ होते हैं, और धीरे धीरे लैंड का कोलोनाइजेशन प्लांट्स और एनिमल के द्वारा शुरू होता है। ये कितने, ये भी इसको किस पार्ट, इस पीरियड को क्या क्या, सिक्स, ठीक है, ये किस चीज में डिवाइडेड इंटू सिक्स पीरियड्स, इसको क्या क्या, इस एरा को सिक्स पीरियड में डिवाइड किया गया। ठीक है, कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डेवोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया, और पर्मियन हो गया। इसमें किस कौन सा मैच करेगा? डेवोनियन। पीरियड, इसको डेवोनियन को क्या बोलते हैं? एज ऑफ फिशेस भी बोलते हैं, एज ऑफ फिशेस। ठीक है, इसी पीरियड में पहले एम्फीबियंस भी आते हैं और सीड प्लांट्स आते हैं। उसके बाद आ गया मेसोजोइक। तो मेसोजोइक क्या है, 251.9 से 6 मिलियन ईयर्स एगो तक है। इनको कहा जाता है इस पीरियड को, इसको सॉरी, इस एरा को क्या कहते हैं? एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी एरा में डोमिनेंस था किसका? डायनासोर्स का। इसमें तीन पीरियड थे, ट्रियासिक, ड्यूरासिक और क्रिटेरियस, क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस में वही जो मेटियोर आया चारों तरफ, लावा ही लावा हो गया, तो वो है क्रिटेशियस। जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, वो भी क्रिटेशियस पीरियड का ही है। हाँ, हाँ, यस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सीनोजोइक। तो सीनोजोइक का हमारा करंट एरा है, इस एरा में हो रहा है उसको बोलते हैं सीनोजोइक। ये 66 मिलियन ईयर से अभी तक है। इसको तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है, ये पैलियोजिन, नियोजिन और क्वाटरनरी। ठीक है, और उसमें से जो नियोसिन है वो इपॉक है, किस पीरियड को बिलोंग करता है? तो नियोजिन पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये मियोसिन में आएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो इसी मियोसिन में ही क्या हुआ, मियोसिन इपॉक में ही ये 23 टू 5.3 मिलियन ईयर्स को तक है। इसी मिलियन मतलब ग्रासलैंड का इवोल्यूशन हुआ। तो ग्रासलैंड आएंगे तो घास तो जम गया, तो खाने वाला कोई आएगा ना, तो ग्रेजिंग एनिमल्स का इसी पीरियड में इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो अगर आप इवोल्यूशन पढ़े ना बहुत ही ध्यान से, तो हर कुछ बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है। इसलिए कि बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, सपोज, उसने इसको डिजाइन किया कि कैसे कैसे हो, किस स्टेप पे क्या होगा, किसको पहले रखना है, किसको एक्सटेंड करना है, इसको फिर, ठीक है, कैसे एनर्जी का चैनलाइजेशन होगा, किसका लिए क्या फूड होगा, क्या क्या है। मतलब इट्स लाइक इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट। ये नेचर ने कैसे सेग्रेगेट किया सब कुछ, कैसे इवॉल्व हुई नेचर में सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको एक बार नजर देख लेंगे, कि फिर से सवाल आ सकते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन था, इसमें तीन प्री कैम्ब्रियन था, इसमें तीन थे, प्रोटोरोजोइक यून थे, आर्कियन था और हेडियन था। ठीक है, पैलियोजोइक में भी तीन थे, सॉरी छह थे, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, लुईसियन, कैम्ब्रियन। ठीक है, उसके बाद मेसोजोइक में क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, और सिनोजोइक में क्वाटरनरी और टर्सरी।
जो टर्सरी है उसको दो पार्ट में बढ़ाएगा, फाइलोजेनी, यूजी, ठीक है। तो उसी में से कौन सा आता है हमारा मियोसिन, ये टर्सरी का है। इसमें होलोसिन में यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। ये प्लीस्टोसिन था, आइसिस जब शुरू हुआ, लिस्टिमन से लेकर आइसिस, आइसिस जब भी आएगा ना प्लीस्टोसिन, लिस्ट से मैच करना है, ठीक है। तो इसको लिस्ट से मैच करना है। टेस्टिंग योर बॉलिंग स्नो, डी का 2 1 चाहिए, D1 D2 D2, ठीक है। तो इसका जो है, इसका सिंबल थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है, इसको रहने देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि प्योर एयर का सिंबल ही होता है, हेज का ही होता है, मिस्ट का ही होता है, फॉग का ही होता है, डीजल का ही होता है, रेन का ही होता है, स्नो का, स्लीट का ही है, ठीक है। ये हमारे सरकारी किताब में दिया हुआ है। तो सरकारी किताबें भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम भी सरकार लेती है ना, तो इसलिए, ठीक है। ये है ना ड्रिफ्टिंग स्नो, ये रहा, इसको देखेंगे एक बार। उसको क्या है कि स्टेटमेंट दिया वही असोसिएशन, द सेंटर ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, द मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड टेंड टू बी द टॉपिक, सही बात है। ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम द ट्रॉपिकल एरिया हैड अ मोर स्टेबल क्लाइमेट, नेवर बीन ग्लेशियर्ड, देयरफॉर, दोनों सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एक ऐसा एरिया था, ठीक है, जैसे कि जब क्या हो गया ना कि चारों तरफ बर्फ जमने लगा, तो ट्रॉपिक ट्रॉपिक से कुछ ही एरिया था, बहुत ही कम एरिया जो कि ग्लेशिएटेड हुआ, वहां पे वो ग्लेशियर मतलब क्या ग्लेशिएटेड हुआ ही नहीं उस रीजन में। इस कारण से उस रीजन के जो स्पीसीज थे, प्लांट फ्लोरा या फौना, वो इवॉल्व करते ही रह गए, ठीक है। इसी कारण से इनका ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। तो ये इवोल्यूशनरी कंटिन्यूटी रही है यहाँ पे, इस कारण से। चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स, कौन से फॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर अर्थवर्क ओरिजिन, इज इनिशिएटेड ओनली बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ से कौन सा, तो वो है नॉर्मल फॉल्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जब फोर्स लग रहा है, ये है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये इधर पीछे इधर पीछे, तो उसके कारण से अर्थक्वेक अगर आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉल्ट क्या होते हैं, जब पुश होता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और टेंसाइल ऐसे force, जब दोनों साइड से लगा। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है, तो शियर स्ट्रेस ब्लॉक्स मतलब साइड मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जैसे सैंडविच फॉल्ट है, इसके लिए फेमस है। और ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट क्या हो गया, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस रिजिम होता है वहां पे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों के कारण होता है, स्लाइडिंग पास्ट जो होता है। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या कहो, जैसे कि सेंट्रल डिफ्यूजन है अफ्रीका में, वो नॉर्मल फॉल्ट है, अलग हो रहा है। मिड ओशनिक रीज है, वो क्या नॉर्मल फॉल्ट है। तो ये हो गया डीप स्लीप फॉल्ट, टेंशन का है, ठीक है। रिवर्स कंप्रेंसल का है डीप स्लीप फॉल्ट, रिवर्स। तो इसमें क्रस्टल लेंथनिंग होता है, क्रस्ट बड़ा होता है, तो कुछ आएगा फ्लो में, इसमें क्रस्ट छोटा होता है, शॉर्टनिंग होता है। स्टैक स्लिप फॉल्ट ये ऐसे, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट ये ऐसे भी ऐसे, और प्लस ऊपर नीचे सब एक साथ, ठीक है। चलते हैं। उसके बाद आगे फॉलोइंग मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है इसको अरेंज, ठीक है, कि जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा वैसे वैसे होगा। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले अल्बाइट इक्विडोट हॉर्नफेल्स, उसके बाद बनेगा ग्रीन सिस्ट, उसके बाद बनेगा ब्लू सिस्ट, उसके बाद ठीक है इक्लोगाइट,
क्योंकि एल्बाइट इपिडोट कॉन्फ्लेक्स है वो लो प्रेशर में बहुत बनते हैं, जैसे 0.5 से 2 किलो बार, ठीक, और लो मीडियम टेम्परेचर भी चाहिए 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बनता है ग्रीन सिस्ट, जिसको 2 से 8 किलो बार का प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड है। उसके बाद बनते हैं ब्लू सिस्ट, वो 8 से 12 किलो बार और टेम्परेचर उसके भी लगभग 500, मेनली प्रेशर के हिसाब से बनाना, मेटामॉर्फिक प्रोसेस, तो हाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ठीक। उसके बाद बनता है इक्विलाइट। इक्लोगाइट जो होता है, इक्लोगाइट वो ग्रेटर देन 12 किलो बार का प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर चाहिए अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, ठीक है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक पे वो बनते हैं, ठीक है। और ये काफी डीपेस्ट पार्ट में पाए जाते हैं, सबडक्शन जोन के या लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे इतना प्रेशर और टेम्परेचर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी ए डी बी, ये डी बी। चलते हैं नेक्स्ट। ये दिया हुआ इनके थोड़ा देखने से, और ये हमारा वो था मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये प्रेशर कहाँ था? जियोलाइट था, ठीक है, उसी में आ जाते हैं ये सब। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? ग्रीन सिस्ट बनता है, इधर प्रेशर ज्यादा है तो ब्लू सिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? इक्विलाइट, बहुत ज्यादा प्रेशर और क्या होता है टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर यहीं पे बन गया, ये इतना ही टेम्परेचर पे ये बन गया, ये प्रेशर पे इतना ही बन गया, इसका और ज्यादा प्रेशर, मतलब ये देखिए ज्यादा प्रेशर ऐसे देखा जाए तो दो मेटामॉर्फिक में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों साथ में। नेक्स्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पी अकर्स नेचुरली इन रॉक एंड रिलीज इन वाटर बाय वेदरिंग, ठीक, मतलब पी क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस जिस है ऑर्थोफॉस्फेट, फास्फोरस जिस ऑर्थोफॉस्फेट एंड ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट इन द वाटर, बिल्कुल सही बात है। डिजॉल्व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज आल्सो रिफर्ड एज सोलुबल एक्टिव फास्फोरस, बात है। Phosphorus is limiting nutrient in the aquatic system, ये बात है। It is difficult to differentiate between zooplankton phosphorus, bacterial phosphorus, algae phosphorus, inorganic phosphorus, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फास्फोरस क्या है? अलग अलग तरह के रॉक में पाया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी में मिनरल एपेटाइट है, कैल्शियम फॉस्फेट में। वेदरिंग प्रोसेस क्या करता है? इसको रिलीज करता है फॉस्फेट आयन, जो कि सॉइल में वाटर सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। जो फास्फोरस है वो ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, या ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट वाटर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फेट क्या होगा? डिजॉल्व ऑर्गेनिक फॉर्म दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल इन बायोलॉजिकल अपटेक। और ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फोरस क्या? फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिजॉल्व इनऑर्गेनिक, हाँ, तो ये डिजॉल्व इनऑर्गेनिक जो फॉस्फोरस है वो सोल्यूबल, रिफर्ड एज सोल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन इकोसिस्टम, फॉस्फोरस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फ्रेश वाटर में, कि इसका अवेलेबिलिटी कांस्टेंट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, ठीक है। ये फॉलो करता है लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है। कौन सा? लीबिग्स, देख के पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ, दिखा देती है मैं, लॉ मिनिमम। लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम क्या था कि जो स्केरेस्ट होता है, सबसे कम एसेंशियल रिसोर्स लिमिट, ठीक है, जिसको सबसे कम होता है एसेंशियल रिसोर्स, वो ग्रोथ को लिमिट करता है, ठीक है। तो मैरीन इन्वायरमेंट में क्या, नाइट्रोजन कॉमनली लिमिटिंग है, ठीक है, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में फॉस्फोरस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इसके कमी के कारण बहुत सारी एक्टिविटी नहीं होता है। उसके बाद क्या है कि डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि डिफिकल्ट क्यों है, ठीक है, तो डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि ये जो सारे क्या बोलते हैं फास्फोरस है, उसको इजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। वैसे इंपॉर्टेंट क्यों फास्फोरस इक्वेटिक सिस्टम क्रिटिकल क्यों है, पहले जान लेते हैं। नॉर्मली भी तो डीएनए आरएनए एटीपी और फॉस्फोलिपिड्स के लिए एसेंशियल है,
ठीक है, नेचुरल लेवल्स जो होते हैं फास्फोरस के ऑलरेडी लो होते हैं, तो इसलिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। ह्यूमन इनपुट जैसे फर्टिलाइजर सीवेज के कारण यूट्रोफिकेशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन की तरह इसका कोई गैसियस फेज नहीं होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल में, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। और दूसरा, ठीक है, कि ये साइकिल लोकली होता है विद इन इकोसिस्टम rather than ग्लोबली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ भी असर्शन रीजन आ गया। ग्लेशियर लेक्स गेट स्ट्रेटिफाइड ड्यूरिंग विंटर्स, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री। हाँ सही बात है भाई, बिकॉज वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लेशियर से मैनी लेक्स इन कोल्ड रीजन एक्सहिबिट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब एक लेयर बन जाता है कि ऊपर का पूरा ठंडा हो गया, नीचे का 4 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी और 4 डिग्री, ये भी सही बात है कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाटर लेस डेंस हो जाता है जैसे जैसे वो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाता है, इसीलिए बर्फ जो होता है वो वाटर के ऊपर तैरता है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, इसको करना है मास मूवमेंट इंक्रीज करना, कौन सबसे धीरे, फिर उससे फास्ट, उससे फास्ट, उससे फास्ट, उससे फास्ट। तो यहाँ पे सबसे तो होगा अर्थ क्रीप, काफी धीरे करता है। उसके बाद कौन आ जाएगा, अर्थ फ्लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मास को एक साथ करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डेवरिज फ्लो और रॉक फॉल, तो सबसे फास्ट पत्थर गिरा के देखना, सबसे फास्ट वही जाएगा। ठीक है, तो अर्थ क्यूब क्या बहुत स्लो करता है, मतलब मिलीमीटर टू सेंटीमीटर पर ईयर। ये धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे जमीन खिसक रहा है, स्लो स्लो, वो इंडिकेट करता है कि भाई आने समय में कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक। उसके बाद क्या, अर्थ फ्लो, ये क्या कहता है, मीटर्स पर डे टू पर वीक्स। ठीक है, तो ये फास्ट है। उसके बाद डेवरिज फ्लो, डेवरिज मतलब बहुत फास्ट, ये मीटर पर आवर टू किलोमीटर पर आवर, तो पूरा स्लरी जो मिक्स होता है वाटर का, सॉइल का, रॉक्स का, वेजिटेशन का, सब कुछ ऊपर से नीचे की तरफ चलाया। उसके बाद लहर वहर सब इसी में आते हैं। रॉकफॉल, रॉकफॉल तो पता ही है, उसका 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ऊपर से गिरते आ रहा है दम धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्पीड में। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो किस किस चीज से कोरिलेट करता है, तो वाटर कंटेंट, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है लूज मटेरियल में तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। मटेरियल कोहेसन, अगर मटेरियल कोहेसन ज्यादा है तो स्पीड घट जाएगा, सॉरी वेलोसिटी घट जाएगा। स्लोप एंगल, अगर स्लोप एंगल ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, अगर ऐसे है और कोई ऐसे है तो इस पे ज्यादा फास्ट आएगा नीचे। फ्रिक्शन, अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा। चलते हैं, तो आंसर जो है डीबीसी है। ये है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये रोटेशनल लैंडस्लाइड है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ना था हमें, रॉकफॉल, ये ऐसे ट्रैक्टर क्राफ्ट से नीचे आएगा। अर्थ फ्लो धीरे धीरे स्लो होता है, ठीक है, डेब्रिस फ्लो थोड़ा फास्टर होता है। ठीक है, और क्रीप भी पूरा ऐसे लैंडिंग कट के ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये और फास्ट, ये स्लो होता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्विफर दैट इज measured, the property of an aquifer that is measured of its ability to transmit water under a sloping piezometric surface is called hydraulic conductivity। तो बोलते हैं hydraulic conductivity बोलते हैं। ये डिटेल्स थोड़ा बहुत दिया हुआ है। कई जगह ट्रांसमिसिबिलिटी भी लोग बोल सकते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं डिटेल्स है। ठीक है, strong and rapid moving circumpolar upper westerly air pressure in narrow belt of kilometers, ये क्या है, डिस्टेंस पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ चुका है। ठीक है, वेस्टर्ली पता ही है हमें क्या होता है, वेस्टर्ली क्या है, प्रिवेलिंग विंड से जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है मिडिल लैटिट्यूड्स में। ठीक है, क्रॉसबी वेस्ट पता ही है कि जो मियंडर करता है जेट स्ट्रीम, ठीक है, ग्लोब के चारों तरफ, उसको बोलते हैं क्रॉसबी वेव्स। ठीक है, उसका थर्मल सर्कुलेशन पता ही है, टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण जो होता है उसको थर्मल सर्कुलेशन में आता है। और जेट स्ट्रीम तो पढ़ेगी। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट। Given are below are two statements. One is labeled as a or region pieces. Natural acidic soils are found more in tropics as a result of thousand years of excessive weathering of soil minerals.
बिल्कुल सही बात है। ईयर राउंड टेम्परेचर हाई एंड रिलीज ऑल बेसिक कैटायंस फ्रॉम द प्राइमरी। बिल्कुल सही बात है। वाई? बिकॉज ईयर राउंड टेम्परेचर हाई रेनफॉल क्या होता है, बेसिक जो कैटायंस है, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स लीच कर देता है, नीचे जाकर डी होराइजन हो जाता है। तो ये सही हो गया। ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में थाउजेंड ईयर में एक्सेसिव वेदरिंग से होता है। ठीक है। क्यों? इनको अधिकतर ना जो ट्राइब्स होते हैं ट्रॉपिकल के, उनको क्लासिफाई करते हैं यूएसडीए के हिसाब से चले, ऑक्सी सोर्स में या अल्टी सोर्स में। क्यों? क्योंकि इनका पीएच लो होता है, टिपिकली 5.5 या उससे कम होता है। ठीक। और ये किस कारण से हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म इंटेंसिव वेदरिंग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉइल फॉर्म होता है, डेड मेटल्स इकट्ठे होते हैं, सब कुछ, वो बारिश हुआ सब बह के चला गया, या फिर बारिश हुआ पानी इकट्ठा हुआ सब लीच हो गया नीचे। ठीक है। जो कटायंस होते हैं वो C+ हो गया, चाहे Mg2+ हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो क्या होते हैं, वो लीच कर जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है। और ऊपर क्या रह जाता है, ऊपर बच जाते हैं कौन कौन से, अल्मोनियम, ठीक है, आयरन। अब ये जो जल्दी रेजिस्टेंट, ये जल्दी मोर ये रेजिस्टेंट मिनरल्स, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो इस कारण से ऊपर की तरफ क्या रह जाता है, एसिडिक ज्वाल हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि ये एसिडिफिकेशन में ऐड करते हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो मतलब लीचिंग, पानी बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उसमें जो बेसिक कटायंस हो गए, जो C+, Mg+, जो हो गए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब लीच कर जाता है नीचे का, तो ऊपर पर जो एसिडिक कटायंस, जो हाइड्रोजन के हो गया, या फिर आयरन के हो गया, या फिर अमोनियम के हो गया, तो वो क्या होता है, उसके कारण से सॉइल एसिडिक हो जाता है। ठीक है। चलते हैं। ये है टॉपिकल, क्या होता है, एसिडिक, ये नीचे ये रहता है। फॉरेस्ट में रेसिड्यूज ऑफ फॉरेस्ट लीटर, ह्यूमस मिनरल मिक्सचर, ये सब कुछ होता है। और फिर कॉनिफेरस में एसिडिक लीटर ह्यूमस होता है, ह्यूमस विद आयरन अल्यूमिनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड एट मिड ओशनिक रीज, कौन सा बनेगा सबसे बेस्ट आंसर, बसाल्ट बनेगा। वही बन सकता है ना, क्विकली कूल डाउन होगा, ठीक है, तो वो ही बन सकता है। ठीक है। उसमें जो ऑप्शन दिया है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है, वो तो फेल्सिक है, तो वो इंक्लूसिव इग्नियस रॉक है, एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। और ये क्वार्ट्ज और फेल्सफर से बनता है, अल्कली फेल्सर, ये तो होगा नहीं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, ठीक है, मेजर या कैरेक्टरिस्टिक रॉक है, नॉट ओशनिक क्रस्ट। तो वल्केनिक होगा, एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट टू ग्रेनाइटी है, ये भी फेल्सी रॉक है, रिच इन सिलिका होता है, ये होगा नहीं। ठीक है। एक बार फिर मिग्मा टाइट का देख लेते हैं। तो मिग्मा टाइट ये मिक्स्ड मॉर्फिक मेटामॉर्फिक igneous रॉक है, ठीक है, एक्सट्रीम हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक कंडीशन में बनता है, जहाँ पे इसका पार्शियल मेल्टिंग शुरू हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या है, तो साथ बचता है। ठीक है। यहाँ से निकलता है मिड ओसनिक रीज से। उसके का विच वन ऑफ द फॉलोइंग में कंटेन मैक्सिमम पोटेशियम कंसेंट्रेट, पोटेशियम कंसेंट्रेट किसमें ज्यादा होगा, तो डायो अंडरसाइड है, डायोलाइट, डायो, ठीक है, रियोलाइट में, रियोलाइट में ज्यादा होता है। ठीक है। क्या कंसेंट्रेट है, पोटेशियम कंसेंट्रेट होता है, कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो रायोलाइट में पोटेशियम कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसका स्पेसियो टेम्पोरल चेंजेस होते हैं, हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम इन ट्रॉपिकल ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉकर ऑसिलेशन, वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है। सॉरी सॉरी, सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि सदर्न होता है, ठीक, सदर्न ऑसिलेशन ये क्या है, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन एयर प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। ये एक सीसा पैटर्न है, कभी इधर जाते कभी इधर जाते। चलते हैं नेक्स्ट। द कूल एंड हॉट स्पॉट विद इन फोटोस्फीयर ऑफ सन इज कॉल्ड सन स्पॉट्स। ठीक, इसको सन स्पॉट बोलते हैं।
सनस्पॉट टेम्पोरली डार्कर कोल्डर रीजन होता है, जो कि डार्क इसलिए अफेक्ट करते हैं क्योंकि जो सराउंडिंग है उससे ये 1500 सेंटीग्रेड ज्यादा तक ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, अल्बीटो तो नहीं होगा, तो रिफ्लेक्शन होता है। कोरोना सबसे सबको पता है कि एक्सट्रीमली हॉट रीजन होता है, 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक है, फैकुले क्या होता है, फैकुले भी ब्राइट स्पॉट होते हैं सन में, जो कि सराउंडिंग से ज्यादा गर्म होता है। तो ये है सन स्पॉट। मैच करना है जो प्रोसेस है और एनर्जी रिसोर्स है। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज क्या होगा, सबको पता है, जियोथर्मल एनर्जी। माइग्रेशन और एक्यूमुलेशन से क्या, एक्यूमुलेशन किस में होता है, तो होता है पेट्रोलियम में। ह्यूमिफिकेशन किस में होता है, तो सबको पता है कि कोल में। मैग्मा एक्टिविटी कहाँ होता है, न्यूक्लियर मिनरल्स में। क्या कैंसिल हो जाएगा, हट, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी से एसोसिएटेड है, जैसे वोल्केनिक रीजन होता है, मैग्मा हीट्स करता है ग्राउंड वाटर को, जैसे हो गया। पेट्रोलियम फॉर्मेशन इन्वॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बीइंग बरीड, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, उसके बाद माइग्रेट करते हैं किसे, परमिएबल रॉक से। अनटिल जब तक वो माइग्रेट करते करते नीचे जाते थे, कोई इम्परमिएबल लेयर ना आ जाए और फिर इसमें वो ट्रैप हो जाता है। तो माइग्रेशन और एक्यूमुलेशन प्रोसेस है ऑयल और गैस रिजर्व के। तो ह्यूमिफिकेशन होता है कोल में, ठीक है। ये प्लांट मटेरियल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, एनारोबिकली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट बनता है उसके अंडर प्रेशर और हीट में जियोलॉजिकल टाइम, मतलब बहुत हजारों साल में ट्रांसफॉर्म होता है कोल में। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मिनरल्स का मैग्नेटिक एक्टिविटी होता है, क्रूशियल है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ यूरेनियम और थोरियम नहीं होगा तो वो नहीं बनेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। वाटर potential consists of metallic potential, osmotic and solid potential, hydrostatic pressure and gravitational forces. Which of the following statement true? ठीक है, the metallic potential values are always positive while the osmotic potential are always negative, नहीं, गलत बात है। The metallic potential determines the interaction of solid surface such as cell walls and colloidal system water, तो ये सही बात है। The metallic potential values are always negative while the osmotic potential values are always positive, गलत बात है। osmotic potential फ्री एनर्जी विच इज कॉल्ड आइकॉनिक पोटेंशियल, ये भी गलत है। ठीक है, तो जो मैट्रिक पोटेंशियल होता है वो या तो हमेशा नेगेटिव होता है या फिर जीरो होता है, पॉजिटिव कभी नहीं होता है। तो क्योंकि ये मैट्रिक पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम अ मैट्रिक्स अगेंस्ट ऑब्जॉर्प्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये प्योर वाटर का तो जीरो होगा, फ्री वाटर का। अब बिकम्स नेगेटिव व्हेन वाटर बॉइलिंग इंक्रीजेस। कोई नहीं, ठीक है। लोकल विंड से मैच करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चिनूक क्या है, तो हॉट लोकल विंड है। मिस्ट्रल का है, तो मिस्ट्रल कोल्ड लोकल विंड है। डस्ट स्टॉर्म्स क्या है, तो डस्ट स्टॉर्म इंसुलेशन लोकल विंड है। सैंटाना क्या है, चैनल लोकल विंड है। एक चैनल के थ्रू फ्लो करता है और माउंटेन से ऊपर नीचे की तरफ आता है, इस कारण से वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे साथ में ये मैप पे मैंने दिए हैं कहाँ पे कौन से लोकल विंड चलते हैं, उनके नाम के हिसाब से ये पूरा एक लिस्ट है। ठीक है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, कहाँ पे चलते हैं, ठीक है, किस रीजन में है, ठीक है, किस तरह का है, कैटाबैटिक है और टेंट्राई है, किस तरह का है। ठीक है, ये पूरा लिस्ट है एकदम बड़ा सा। चलते नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बिलोंग टू एवेस्टॉस मिनरल। एवेस्टॉस मिनरल्स में कौन से इसमें से होता है। एवेस्टॉस मिनरल्स में टोटल 6 होते हैं नेचुरल सिलिकेट मिनरल होते हैं। एब्सेंट मिनरल्स का ग्रुप है, उसमें 6 नेचुरली अकरिंग सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। उनके सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फाइब्रस क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें पता है तो पता है, एक्टिनोलाइट हो जाएगा, नहीं पता तो नहीं पता है, ऐसे क्वेश्चन।
ठीक है। उसके बाद एमोसाइट हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा बी और डी बोल, ठीक है। गैलेना क्यों नहीं, तो गैलेना तो और मिनरल है किसका, लेड का, ठीक है। गैलेना यानी कि पीबीएस, ये और मिनरल है किसका, लेड का, ठीक है। एपेटाइट क्या हो गया, तो एपेटाइट ग्रुप है किसका, एपेटाइट क्या है, ये ग्रुप है फॉस्फेट, फॉस्फेट मिनरल्स का, ठीक है। और सीना बार क्या हो गया, तो सीना बार तो ये क्या हो गया, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो जो हमारे छह, इसको भी अभी आना है, लेक्चर रिपीट करने में बहुत ही समस्या, ठीक है। कोई नहीं, इसको नहीं। तो इसमें छह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चाइरोसो टाइल, ठीक है, सर्पेंटाइन ग्रुप का हो गया। फिर एमोसाइट, ये कौन सा ग्रुप है, एम्फीबोले ग्रुप हो गया। फिर क्रोसीडोलाइट, क्रोसीडोलाइट, ये कौन सा हो गया, ये अभी एम्फीफोल ग्रुप का हो गया। फिर एंथोफिलाइट, एंथोफिलाइट क्या हो गया, ये भी एम्फीफोल ग्रुप का हो गया। फिर हो गया ट्रेमोलाइट, ये भी एम्फीफोल ग्रुप का हो गया। मतलब एक जो शुरू का है यही सर्पेंटाइन ग्रुप का है, बाकी सब एम्फीबोलाइट, एम्फीबोले ग्रुप का है। फिर क्या है, एक्टिनोलाइट, ठीक है, ये तो पढ़ा था, ये छह है, एक दो तीन, यह है छह, ठीक है। ग्रुप है नेचुरली रैपिंग सेकेंडरी मेंशन एब्स्ट्रस मिनरल्स, ठीक है। ये फाइब्रस होते हैं, ऐसे दिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये छह हो गए यहाँ पे मैंने जैसे नाम भी दिया हुआ, अच्छे से तो कर लेना, ठीक। उसका बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। इसका आंसर होगा मैग्मेटिक आर्क, सिंपल सा, ठीक है। आइलैंड आर्क कब होता है, जब ओशन ओशन होता है। फ्यूचर जोन क्या हो गया, कि जब दो बाउंड्री कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं, फ्यूज टुगेदर जाते हैं, ठीक है, तो वो सूचर जोन है, मतलब उनका। और मिड ओशन की तो पता ही है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे होता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक आर्क है, ठीक है। ये यहाँ से आया है ओशन प्लेट, और ये मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसके अंदर ये यहाँ से पिघलेगा, ये यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन होंगे, राइज होगा, ठीक है। ये पूरा अपना ये है ना रिंग ऑफ फायर, वो इसका क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ भी देखो, जैसे ये आया ओशन फ्लड, यहाँ पे गया मेल्ट होगा, तो मेल्ट होगा तो राइज करेगा, राइज होगा वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो ये पे पहाड़ होगा। जैसे एंडीज है ना, एंडीज, उसमें नाजका प्लेट, ओशनिक प्लेट है, वो उसके साथ, ठीक है, उसके नीचे वो गया है, इसके कारण वो बना हुआ है। तो डन, अच्छा ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, नेक्स्ट जो सेट है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर ये किसी तरह से हेल्प हो रहा है, सपोज किसी भी तरह से, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग में, क्वेश्चन समझने में, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी चीज़, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग, ठीक है, लाइक करें। और जो भी फीडबैक है वो दें कि क्या इम्प्रूवमेंट और की जा सकती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है, वो सेम नाम से, टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे स्मार्ट वेब PRE नेट, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसके जो PDFs हैं वो दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं मटेरियल भी आई एम ट्राइंग टू कन्फाइन, मतलब ऐसे इस फॉर्मेट में, जैसे कि है ना टेबल्स फॉर्मेट में मैटर को रेडी कर रहा हूँ, तो वो भी, ठीक है, 10-15 डेज में डालना शुरू कर देंगे लेक्चर के साथ। और थोड़ा हेल्थ इशूज है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है अभी, तो जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाता है और बेटर होता है, तो फिर जो डेली जो क्लासेस है ना टॉपिक्स के, मतलब PYQs के अलावा, वो भी हम अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए, अगर फॉर्म आ गए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गए हैं, तो फॉर्म भर दें जितना जल्दी हो सके, ठीक है। टिल देन एंजॉय, ठीक है, पढ़ाई करें, एंजॉय भी करें, सब करें, ठीक है। टेक केयर ऑफ, टेक ए गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। बाय।